I'm Sohani Mangla. I'm a second year student of BSc Honors Statistics from Ramjas College. Okay, so Sohani, you are studying in statistics. So have you done some part in Excel, some Yeah, studies? uh, a little bit like finding frequencies and all from the data Okay, and the finding basics. for finding frequency, what formula you were using? I think it was COUNTIF, Okay, or we can also use the frequent. There was a frequency formula also. okay, great. So what all formula you have used apart from count? Apart from that, the basics only. Till now, we have not done much in our course about Excel, but like the basics I am familiar with. Okay, so I guess you might have used a sum, average, Yeah, yeah, minimum, maximum, standard deviation, yeah, count you have used, some you have used, some if you have used. yeah, yeah. It's something we have used in school also. So Some if I'm talking about. some if no, Okay. And we look up, H lookup. no, not right now. Okay, great. No issues. We'll cover up that. Sorry. Okay, thanks for the intro. Tanvi, Hello, please. I'm Tanvi and I am a graduate. I have already graduated from baby analytics. Okay, in which area you have done the graduation? Sorry, sir. In which stream you have done your graduation? Baby analytics. Recon- Analytics. Yes. Okay, so in analytics, what all things have you learned, Tanvi? Excel, but I was actually a late admission. So when I admissioned, already Excel's basic and a lot of formulas were done. Then we had like Python, then it was R, then stats, and after last one was Scala. Okay, so means this is which year of yours? आप कौन से year में हो भी? अभी sir, I have graduated. Okay. Okay, no issue. So let's just start with little intro. Sorry, intro is done. Now we'll start with a little work with Excel. Okay. So as you all are aware with this environment, this is the Excel environment that you all can see, and you all are aware with this environment. Let me go through quickly in initial 5 minutes about what all things are there. So if Your screen is not shared. Can you share your screen first? yeah, I'll share it. Is it visible now? Yes, sir. Okay, great. So this is a general environment that you are seeing in front of your screen. This is a general Excel environment where you can see there are wherever I'm clicking, you can see these things are called as cells, right? And these cells are you can see on top. This is A, B, C, D, E, F, G, and in the left side you can see the row number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So wherever I click, suppose I click over here, so you can see this is column is G and row is 4. So address of this is G4 and you can see this address over here. So this is called the address bar, right? So wherever you click, जहां भी आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको एड्रेस बार इस तरह से दिखाई देगा. तो जहां भी आप क्लिक करेंगे वो एड्रेस आपको इस तरह इस जगह पे दिखाई देगा. दूसरी चीज इस एनवायरनमेंट में आती है, दैट इज फॉर्मूला बार. तो यहाँ पे आप जो कुछ देख रहे हो, ये जो अगर हम यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखा पैलिन,
right? So now you can see this is Palin coming from coming at this place and coming at this place as well, because this is a जस्ट अ स्टैंड अलोन वैल्यू, ये सिर्फ एक अकेली वैल्यू है। तो चाहे आप फॉर्मूला में देख लें या एक्चुअल वैल्यू देख लें, दोनों एक ही चीज दिखाई देगी। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है कहीं और पे जाके कॉपी हो जाए और मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँ वो एज इट इज हो जाए, तो सपोज हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ पे हम इस वाली सेल को हम इस सेल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा H5 है इसको हम E5 के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लगाया और यहाँ पे हमने इसको रेफर कर दिया, राइट? तो जैसे ही हमने रेफर किया, जो भी वैल्यू हमारी E5 में है वो हमारी H5 में बन के आ गई। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर दूं, सपोज यहाँ पे मैं एक्सेल लिख देता हूँ, तो वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पे एक्सेल कॉपी होके आ जाएगी। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यहाँ पे तो आप एक्सेल देख रहे हो, बट यहाँ पे फॉर्मूला बार जो आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला बार में यहाँ पे एक्सेल नहीं लिखा है, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे कुछ भी हो, अगर स्टैंड अलोन वैल्यू है तो यहाँ की वैल्यू और फॉर्मूला बार की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला बार आपको फॉर्मूला ही शो करेगा और जो सेल की वैल्यू है वो actual value show करेगी। So there can be different values in formula bar and your cell, right? And so this is a little about environment। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे there is sheet 1, right? So ये आपके पूरा एक वर्किंग स्पेस होता है जहाँ पे आपके पास A से और XFD तक यहाँ पे ये सारे बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम काउंट करें कि कितने कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16,324 कॉलम्स होते हैं। टोटल 16,384 कॉलम्स हमारे पास होते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड में काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास रोज होती हैं। यहाँ पे हम रोज, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम रोज फिलअप कर देते तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 10 लाख और 4,000, 10,48,576 मीन्स 10 लाख रोज, लगभग 1 मिलियन रोज। यू कैन सी 1 मिलियन रोज होती हैं। सो यू कैन सी वी हैव अराउंड 16,000 ऑफ कॉलम्स एंड 1 मिलियन ऑफ रोज अराउंड। तो वी कैन मेक अ एक्सटेंसिव टेबल ओवर हियर। सो बहुत बार टेबल्स होती हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू इनिशियल ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे बार में देख सकते हो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट। सो सबसे पहले अगर हम फाइल में जाते हैं तो ये हमारा इनिशियल स्क्रीन होती है। यू कैन सी यू ओपन एनी एग्जिस्टिंग फाइल, then you can save your file, you can print your file, you can export your file in different formats, right? Then Excel itself has provided the many templates, so you can um, uh, take any of these templates, like there is photo calendar is there, budgeting calendar, budgeting template is there, monthly company budget, academic calendar, or seasonal illustrated, like that। बहुत सारे टेम्पलेट सैंपल ही यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। नीड के अकॉर्डिंग हम इनको यूज कर सकते हैं, अगर नीड नहीं है तो कुछ इसमें यूज करने की नीड नहीं पड़ती है। एंड देन इफ यू वांट नथिंग ऑफ दीज एंड जस्ट यू वांट अ ब्लैंक वर्कबुक, सो आप यहाँ पे सिंपली एक ब्लैंक वर्कबुक भी खोल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे खोली हुई है, राइट? एंड आपको और शीट्स की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस पे ऐड करके आप नई नई शीट्स भी ऐड कर सकते हो। तो दिस इज अ जनरल इन्वायरमेंट। देन अब हमारे पास जो मेन जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस होम, राइट? सो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पे इस तरह से खुल के आ रहा है। ये थोड़ा सा स्क्रीन में स्पेस सेविंग की वजह से मैंने इस तरह से ऑन किया हुआ है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो। तो फिक्स करने के लिए जो ये आपका ये जो रिबन है, इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट ऑलवेज शो रिबन। तो यहाँ पे अब जो ए है, जो आपके रोज हैं वो इस जगह से स्टार्ट हो रही है,
और ऊपर आपका रिबन दिखाई दे रहा है। तो आप किसी पे भी जाओगे तो रिबन अब आपका यहाँ पे स्टेबल बना रहेगा, राइट। अब यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद सम ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस हैं, जो कि इनिशियल ऑप्शंस होते हैं। जनरली हमें कोई भी वैल्यू कॉपी करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, या मूव करनी होती है, देन वी यूज कट, एंड जस्ट टू कॉपी वी यूज कॉपी। देन वी हैव दिस फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज थोड़े टाइम में हम करेंगे, बताएंगे कि ये फॉर्मेट पेंटर हमारा क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। कट, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे जो तीन चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस करी, कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये तीन चीजें होती हैं जो आपके एक्सेल की लाइफ में, या अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, या आप कहीं भी आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसका। कट मीन्स you need to get a value from one place and that value needs to be moved from one place to other place. For example, अगर मुझे यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन, और इस वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के और यहाँ पे F8 पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कट करूंगा। तो कट के लिए सिंपली राइट क्लिक किया, कट, एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, राइट। तो दिस इज सिंपल पेस्ट। तो जो हमारा सोर्स है वहां से फाइल उठ के, वहां से जो भी डेटा है वो उठ के दूसरी जगह पे चला गया, दैट्स व्हाट इज कट। बट अगर हम चाहते हैं कि सोर्स में भी बना रहे और डेस्टिनेशन में भी बना रहे, तो हम उसके लिए कॉपी को यूज करते हैं। हमने यहाँ पे कॉपी किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो एज इट इज वो दोनों जगहों पे डेटा बना हुआ, दैट्स व्हाट इज कॉपी एंड देन पेस्ट हमने देखा। इन द पेस्ट वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, तो हम इन टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं और ये डिफरेंट पेस्ट ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, राइट। उसके बाद फिर ये हमारा जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो फॉन्ट वाला एरिया दिख रहा है, तो इसमें फॉन्ट सेटिंग हो सकती है, कम ज्यादा कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं। देन ये आपका नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट का सेक्शन आता है। अलाइनमेंट का सेक्शन क्या करता है कि जो भी हमारा जो भी एरिया है, जो भी सेल है जहाँ पे काम हो रहा है, वो किस तरह से देखना चाहिए, उसका डेटा कैसे देखना चाहिए, मिड में देखना चाहिए, या सेंटर अलाइन होना चाहिए, या लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सिंपली इस सेल की जो लेंथ है मैंने इस तरह से बढ़ा दी, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं कि लेफ्ट अलाइन है तो आप लेफ्ट लाइन में, अगर राइट अलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये राइट अलाइन दिख रहा है, मिडिल में करना चाहते हो ये मिडिल में दिख रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये इस तरह से विड्थ वाइज, हाइट वाइज ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं, वी वांट दिस टू बी visible at middle level, median level, we can set in this way, राइट। तो अपर में देखना है, मिडिल में देखना है, या लास्ट में देखना है। सो दिस इज व्हाट इज द अलाइनमेंट। एंड इस अलाइनमेंट में एक फीचर आता है आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन का, कि आप टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे सेट करना चाहते हो। सो यहाँ पे आप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस आर देयर। सो whatever you will select, you can see your data, your value, no, value inside the cell is converted to that value। तो इससे आप अपने सेल की जो भी अलाइनमेंट है वो बहुत आसानी से सेट कर सकते हो। एंड देन हमारे पास एक ये ऑप्शन दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। कभी कभी हमारे पास पोजीशन ऐसी आएगी कि जो हमारी एक्चुअल सेल की जो लेंथ है, जो सेल की विड्थ है, वो कम पड़ गई, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं फालिन एनालिटिक्स, राइट, फालिन एनालिटिक्स इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये लिखा है, और अभी हम यहाँ पे हमें पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, और ये जो हमने लिखा है ये सारा एफ वाले पार्ट में लिखा हुआ है। अगर जी वाला पार्ट कुछ आ जाता है, तो सपोज दिस इज द बेस्ट, इस तरह से आ गया। नाउ यू कैन सी
the F3 वाला part is missing, right? क्योंकि आगे दूसरा डेटा आ गया तो now priority is to show that data first, right? तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो हम यहाँ पे ये वर्ड रैप का ऑप्शन यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इस तरह से वर्ड रैप पे क्लिक किया। जैसे ही हमने वर्ड रैप पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी द height of entire row is increased and the entire data that we wanted to see over here is visible, right? So इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से यहाँ पे ये मर्जिंग का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे जब भी आपको नीड के अकॉर्डिंग दो अलग अलग सेल्स को मर्ज करना होता है या अनमर्ज भी करना होता है, तो हम यहाँ पे मर्जिंग के ऑप्शंस को यूज करते हैं। जब भी हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस की बहुत जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर पार्ट। अब हम यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे लिखा नंबर है, लेकिन इसके अंदर आप सारे डेटा टाइप्स को मैनेज कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट, एनीथिंग दैट यू कैन सी इज अवेलेबल ओवर हियर, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अभी कुछ नंबर्स, मैंने कुछ नंबर्स लिखे, for example 78 and 98, then 43 and 56. Like this we have few numbers written over here. Now if I want to convert this number to proper um, format, right? So you can see different number formats are there. So first of all there is this fraction number format 78.880. तो ये हम select करते हैं तो you can see this data is converted into that platform. In the same way, there is currency. So with currency, you can apply the currency symbol also in front of the digits. Now, when you have applied the currency, जब हमने यहाँ पे currency को apply कर दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये number नहीं है, राइट? आप यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन रन करा सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन से सभी लोग फेमिलियर हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन सपोज यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, राइट? सो यू कैन सी द अर्थमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म very easily. So you can perform any arithmetic operation with this. This is not the converted data type, right? देन इसी तरह यहाँ पे आप शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट को भी यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक डेट यूज करते हैं, सो दैट इज 24th of July and 2025, right? So you can see here this has come in this format where you can see this is 24th of July 2025. Now let's understand more about dates, कि डेट में और क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस डेट को कन्वर्ट करने की कोशिश करें नंबर में, so you can see now this is representing this number. कैन एनीबडी टेल व्हाट इज दिस नंबर? ये नंबर जो यहाँ पे में दिख रहा है ये क्या हो सकता है? कैन एनीबडी गेस व्हाट इज दिस नंबर? दीक्षा, सुहानी, तन्वी, एनी गेस व्हाट कुड बी दिस नंबर? आर यू ऑल एबल टू फॉलो विद मी? आप मेरे साथ फॉलो कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes. Okay, so please be interactive always whenever I ask, because that's the only way I can judge that you people are here, right? So this is an online class. I cannot see your faces, right? So the only way to get your feedback is your response. So until unless you won't respond, I feel that there is something wrong, right? So please keep on responding. Give me a minute. I'll just connect my charger and then I'll continue.
Okay. So now let me tell you what this number is. So suppose if I take a date 1st Jan 90 1900. Okay. So you can see this is showing like this. And when I convert this into number, you can see this number is coming as 1. In the same way, if I take 2nd Jan 1900, or I take 3rd Jan 1900, or I take 31st Jan 1900, and then I take 28th Feb 1900, and then I take 31st December 1900. Now if I convert all this, मैं अगर इन सबको convert करता हूँ number में, so you can see all these numbers. So from by seeing on these numbers, what you can conclude. आप इससे क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं? मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे डेट्स वापस लेके आता हूँ. अगर आप इनको देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है? एनी आइडिया? No, दीक्षा, sir. सुहानी, तन, हाउ दिस नंबर आर कमिंग? ये नंबर क्या है? आपको क्या लगता है? सर ये तो डेसिमल फॉर्म में आ रहे हैं. डेसिमल फॉर्म में आ रहे हैं? ओनली दैट? या इसके अलावा भी कुछ आपको लग रहा है? टेक 31st of Jan 1901, राइट, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके सेव फॉर्मेट यहाँ पे 31st Jan, सॉरी. तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज 397. तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये नंबर कैसे बढ़ रहा है? ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पे 59 हो गया, दिस इज 366, दिस इज 397. आपको क्या लगता है ये नंबर कैसे बढ़ रहा है? तो लेट मी टेल यू दिस नंबर इज कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1900 इज जस्ट फर्स्ट डे ओवर हियर, राइट. दिस इज सेकेंड डे, दिस इज थर्ड डे, दिस इज 31st डे. सो 1st जनवरी 1900 से 31st जनवरी 1900 के बीच में 31 डेज हैं, तो यहाँ पर नंबर 31 आ रहा है. इसी तरह से 1st जनवरी 1900 से 28 फरवरी 1900 तक 59 डेज हैं, तो दिस इज 59 आ रहा है. So this is basically, this number is the number of days between this 1st January 1900 to 28 Feb 1900. So this 366 is number of days between 1st January 1900 to 31st December 1900. In the same way, this is number of days between 1st January 1900 to 31st January 1901. Right? So number of days is this. In the same way, if I wrote today's date, अगर हम आज की डेट लिखते हैं, so that will become the number of days between 1st January 1900 to the given date. So this is 7th July 7 July 2025. So if I copy this and copy paste over here, so you can see this is number of days between this date and this date. Is this clear? Yes, sir. So this is very important to understand कि ये जो आपकी dates हैं वो कैसे work कर रही हैं, because date is a data type
जो कि आपके डेटा में अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हैंडल करता है, राइट? तो आप डेट के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस बहुत बार लोग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपके सामने कोई लीव ग्रांट कराने आया एंड इट इज अ लेडी, शी इज टेलिंग दैट शी नीड अ प्रेगनेंसी लीव फॉर 180 डेज। तो आज से 180 डेज के बाद कौन सा दिन होने वाला है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या होगा, इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस 180। हमने जैसे यहाँ पे 180 किया, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो दिस इज 3rd जनवरी 2026, हमें डायरेक्ट डेट मिल गई। नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस, सॉरी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इफ आई माइनस दिस वैल्यू माइनस दिस टुडेज डेट, सो दिस इज एग्जैक्ट 180 डेज। तो यहाँ पे 180 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सी डेट होगी, वो हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन ग्रांट द लीव डायरेक्टली। यू डोंट नीड टू सी द कैलेंडर दैट कि 180 डेज के बाद ये डेट पड़ेगी, ये डेट पड़ेगी। यू डोंट नीड टू सी ऑल दोज थिंग्स। सो लाइक दिस यू कैन डू। और समटाइम बहुत बार होता है कि हमें किसी की दो डेट्स के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, किसी की डेट फाइंड आउट करनी, सो आई हैव द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्सन एंड आई हैव द ज्वाइनिंग डेट of that person, right? So from date of birth and joining date, we can just identify that what was the age of this person when he joined this company, right? Or we have to find the tenure of a person inside the company. So from date of joining till current date, we can differentiate and we can find out कि दोनों के बीच में कितना टाइम है, मतलब ये बंदा कितने टाइम से हमारी कंपनी में काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. एनी डाउट, एनीवन? इस चीज में किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, ग्रेट। So now let's move forward. Here you can see many other options also, like currency में representation, short date में, accounting में, time में, percentage representation also you can see, the fraction representation you can see. Apart from that, you can search many other options. So you can define your own custom formats, and you can use these custom formats for your representation. So for example, अगर आपको किसी के लिए किसी डेट्स में आपको डेट नहीं दिखानी, खाली मंथ और ईयर ही दिखाना है, right? So you can see, like if we want to do this for this one, right? So we can just see more and done triple MYY. Okay, so now you can see this is 3M, 3 digits of month, and then YY, year के दो characters. In the same way, you can see here there are DD and MM. So दो character dates के होंगे and तीन characters हमारे मंथ के नाम के होंगे। So you can see this is दो character date के and तीन character मंथ के नाम के। So इस तरह से आप अपने कस्टमाइज्ड वैल्यूज भी बना सकते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे आवर, मिनट, सेकंड वाला पूरा डेटा है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सी इट इज नाउ शोइंग इन आवर एंड मिनट ऑल्सो, राइट? सो लाइक दिस यू कैन चेंज द डेटा, यू कैन put the data as per the requirement, and it will be beneficial for any kind of representation, right? Then there is this currency symbol. If you want to apply, you can apply the currency symbol as well, right? In the same way, percentage. You have to convert certain value into the percentage, so you can use this percentage option. And when there are bigger values and you wish to apply the comma with them, so suppose I have a figure of like this figure is there, right? So now you can see here when comma is applied over here, how beautifully you can trigger and you can find out that this now what this value is. But if commas are not there, so suppose I just type random value over here, right? When commas are not there, you can see you will face
some challenges to read this value, right? You have to find out that this is unit place, this is second, third, fourth, fifth, like that you have to find out. Then you will reach that what it is. But if comma is implemented, you can see here very easily, you will be able to find what this number is, right? So that's why for representation purpose, comma is very important. And then these last two options are, and this is increase decimal and decrease decimal. So if you want to increase the number of decimals in your data, you can increase the number of decimal. Or if you want to decrease, you can just still decrease it. Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, now let's move to more environmental thing. I'll come back to this styles part shortly. पहले हम जो मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज इंसर्टिंग. आपको कहीं भी नई रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं. एंड with this insert you can insert the sheet rows, or you can include a new sheet columns, or if you want to insert a new sheet, right? So you can place that sheet option over here as well. So it will increase the sheet. You can see that the sheet 5 has come, right? And then this is about insert, and this is about delete. So you can, if you want to delete any cell, or if you want to um, delete any rows, or if you want to delete any column, or delete entire sheet, all things will work over here, right? Now this is important when you have to basically you have to style your things, right? So you can adjust the row height, you can adjust the column height as well, right? So for example, if I have um my my name is Kushal, I am a trainer. Okay, so now in this we want to in this we want to increase the row height. So suppose यहाँ पे row height है, you can just click on over here, and if you increase your number over here, you can see the row height is increased. This is how this row height is increased. In the same way, if there is column requirements, you can select the column and you can choose column width. And if you want this to be 16, suppose, so just okay, and you can now see our this is coming till this. My name is Kushal and comma. Right, I am a trainer. This will be in next column only. If you want, you can increase your length in this part as well. I don't have any issue. Are you able to understand this? Yes, sir. Okay. Now, next part is some basic formulas. So these are basic formula links. So if you click over here, you can see this sum, average, count numbers, minimum, maximum. All these things are there. So simply, if you have a data, suppose I just create a random data, rand between, and don't worry with this formula. I'll tell you formula in some time so that you will also be able to generate the data for yourself. Right, so we have a data like this. Now, suppose if we want to do the sum of this data, so simply we'll go to this summation, and we can just select sum, and it will automatically select the range. If you want, you can select your random range as well. Since, for example, you don't want this F column to be calculated, then you can select just this only, right? So by this, you will be able to perform the sum operations, and then few basic operations like average, then count numbers. Count numbers is counting the number of elements inside this list. So, for example, if I count, and I just select this, so you can see this is there are 55 numbers are there
in these 5 rows, right? Then there is minimum and maximum value you can give, you can get it out from a certain range. So minimum and maximum value, right? There are some more functions are there, many more functions are there. We'll come to them one by one. Now, this is uh, eraser part or formatting part where somewhere you want to clear the content, or you want to clear the entire content, or you want to clear the formula of or yeah, or format of something like, for example, here it is written in this way, right? You want to clear this, so just you have to click on this clear format, and you can see this is stated now. So if you want to remove the custom custom designing of your entire sheet, you can use this eraser to clear all or clear format or clear content from a particular cell or area of cell, right? Then, are you able to catch with me, or am I too fast? अगर आपको कुछ बहुत तेज लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो. I'll manage the speed. सर एक बार सम Yes, वाला रिपीट कर दो. sum वाला. Yeah. So, यहाँ पे सम में क्या होता है कि बेसिकली सम में हमें यहाँ पे ये जो हमारी सारी वैल्यूज हैं, इनका हमें समेशन चाहिए, राइट? सम करना है, राइट? सम करने के लिए सिंपली एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने यहाँ पे इक्वल टू डाला, प्लस ये वैल्यू, प्लस ये वैल्यू, प्लस ये वैल्यू, प्लस ये वैल्यू. इस तरह से ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं. हमने पांचों वैल्यूज को सेलेक्ट किया, और हमने यहाँ पे उनका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. बट बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी रेंज बहुत लंबी है, तो रेंज लंबी होने पे आपको हर उस पे हर सेल पे इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं है. सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, जस्ट यहाँ पे हमने सम टाइप किया, जैसे हमने ब्रैकेट लगाया, नाउ इट इज आस्किंग फॉर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. सो वन थिंग इज आई कैन जस्ट टाइप इट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, राइट? बी से ई तक, बी से और एफ तक हमने सारी वैल्यूज सेलेक्ट कर ली, और हमने ओके किया, तो भी आ गया, राइट? और if we just give the range, so sum, and we give the range to do total from this to this, right? So उससे भी हमारा वही रिजल्ट आ गया जो हमारा सम नॉर्मल करने से और 1 by 1 सेलेक्ट करने से, राइट? सो दिस इज कन्वीनियंट मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज जब आपके पास बड़ा डेटा होता है, तो आप एक एक डेटा को, एक एक कॉलम को सेलेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे. आपकी कोशिश ये सर रहेगी कि आप इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद जब सम करा और एंटर दबाया है तो फिर हैशटैग वैल्यू आ रहा है. कहाँ पे आप दिखाओगे एक बार मुझे? स्क्रीन शेयर करो एक बार. I'm not able to share. Actually, I'm doing on laptop and I'm listening class on phone. Okay. I have stopped sharing. Can you start your sharing now? Okay. So can you see? Zoom करके थोड़ा सा दिखाओ. I still I'm not able to see this. Uh, I'm सर not मैंने able to see your तीनों formula. सर मैंने तीनों Sorry. वैल्यू ली और उसके बाद मैंने इनको सम करा और एंटर पे क्लिक करा तो फिर हैशटैग वैल्यू आ रहा है. कुछ गलत सेलेक्ट किया होगा आपने इसमें, ऐसे ऐसे कोई गलत can you send this picture of formula in the group? Yeah, sir, sure.
shared. आप जहाँ पे हैश वैल्यू आ रहा है ना वहां पे आप पहले क्लिक करो और फिर उसके बाद जो ये फोटो लेके भेजो। जहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना वहां पे पहले उस सेल पे जाओ और उसके बाद फिर जो फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूले की फोटो भेजो। सर क्लिक करने पे कुछ हो ही नहीं रहा। आपको क्लिक करके कुछ करना नहीं है, सिर्फ वहां पे मतलब जैसे इस तरह से अगर हम यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करो तो आपका जो सेल है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे H14 में है तो यहाँ पे H14 दिखना चाहिए और यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है वो दिखना चाहिए। जस्ट आप ये सेंड करो मुझे। सर फॉर्मूला ही नहीं शो हो रहा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो यही। ओके, सो अभी हमें क्या है यहाँ पे, ये जो हमारी सेल्स हैं B14 से और F14 तक, हमको इन सबका सम फाइंड आउट करना है, राइट। इन सबका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए मैंने तीन तरीके बताए। पहला तरीका ये है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो, हमने इंडिविजुअली सबको B14 C14 D14 E14 F14 सबको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया है, राइट। एक तरीका सम करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम सम फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। और इसमें जितने भी पैरामीटर हैं B14 टू F14 हमने सारे यहाँ पे डाल दिए, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ डूइंग सम, राइट। लेकिन इन दोनों मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हुए, राइट, लाइक मतलब जैसे यहाँ पे 16,000 कॉलम हो सकते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर किसी डेटा में 150 कॉलम्स अवेलेबल हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप फिर 150 कॉलम्स तक सबको टोटल कराने जाएं, राइट। what you can do is just you have type sum, right, or after that just you have drag the formula. I'll just delete this. I have to select and drag over here. You will be able to see that what range is selected. So this is B14 to F14. Now you don't need to write C14, D14 or E14. Only starting and ending, these two values are there. And once you click on enter, it will give you the result number. Is this clear, Yes sir. Diksha? Yes sir, it's clear now. थोड़ा समझ में आया? Yes See, sir. अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही, डोंट पैनिक, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट नॉट टू अंडरस्टैंड इन फर्स्ट वन गो, राइट। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी लॉट लॉट ऑफ टॉपिक जहां पे मुझे आपको 5-5 6-6 बार बतानी पड़ेगी। सो डोंट वरी एंड नेवर फील शाई टू आस्क एनीथिंग, राइट। दिस इज योर बर्थ राइट। आपको क्वेश्चन अगर डाउट है तो पूछना है, राइट। सो नाउ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यही चीज हम अगर नीचे वाली रोज के लिए भी करना चाहते हैं तो सिंपली वी कैन डू दिस लाइक, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने नीचे की तरफ इसको ड्रैग किया। सो नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली ऑल द वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, राइट। ऑल द फॉर्मूला तीनों का सेम ही है, मैंने बस अलग अलग तरीके से लगाया है। तीनों में सम ही हो रहा है तो नंबर तो वही आएंगे, right, but there are different ways of implementing the same thing. Always there are the smarter choices and always there are some low smart choices, so that's completely up to you कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पे एवरेज का भी फॉर्मूला होता है। तो एवरेज क्या होता है, व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज? एवरेज पढ़ा है आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, सिंपल मैथमेटिक्स? यस नो कुछ तो बोलो। Yes, Are you sir. all here?
Are you all here? Suhani, Diksha. Yes. Okay. So have you studied the average? What is Yes, average? sir. Yes. What is सर average? Can बेसिकली some सर बेसिकली किसी भी सेट का समरी रिप्रेजेंट करता है एवरेज कि लाइक कि जितने भी नंबर्स है इनमें से इन सबको डिवाइड करके और इसका एक एवरेज निकाल देगा so basically अगर हम लेमैन टर्म्स में बोलें सो ये जो 5 वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देना, दैट्स व्हाट इज एवरेज, राइट? सो Yes. इफ वी इफ सो इसका एक तरीका ये है, यहाँ पे ये हम सम है, ये भी सम है, ये भी सम फाइनल है, राइट? इसी तरह से हम यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज एवरेज फाइंड आउट करने के लिए वन वे इज जस्ट डू सम ऑफ दीज वैल्यूज, राइट? और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं तो हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, सो दैट इज एवरेज, राइट? इन द सेम वे यही चीज अब यहाँ पे हमें इसको एवरेज फॉर्मूले से लाना है, तो हम सिंपली एवरेज फॉर्मूला लगाया यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज ऑफ these numbers. Simple, we have to give like this only, so you can see it will also give the same result, right? So one way is average, calculating the average through the sum function, and this is the way where we are calculating the average through the average function. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? Are you able to follow with यस me, सर Yes, sir. everyone? Yes. Okay, now अब यहाँ पे हमेशा आई पर्सनली रिकमेंड टू यूज द फंक्शन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग यूजिंग दिस सम फंक्शन। अब ये ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि सपोज अभी यहाँ पे आपको सारे नंबर एवरेज में दोनों में बराबर दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोज ये 64 नहीं है, यहाँ पे हमने हटा दिया, या हम दूसरा डेटा एक बना लेते हैं, वहां पे करते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमने बनाया रैंक बिटवीन, एंड यहाँ पे हमने 32 99 डेटा बनाया, राइट? अब हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज हम पहली बार निकाला हमने सम के थ्रू निकाला, सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, राइट? एंड इन द सेम वे मैंने इनको कॉपी किया, एंड देन यहाँ पे मैंने निकाला एवरेज using average formula, right? So AV average, and like this, ये यहाँ पे हमें दिखाई देगा। एक बार मैं वैल्यूज फिक्स कर देती हूँ। Okay, I have fixed the values. Yeah, now you can see here this is 80, these values are exactly same. But what happens अगर suppose यहाँ पे ये student absent है, यहाँ पे suppose ये स्टूडेंट absent है, राइट? सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जहां पे सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, वेर एवर ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यू कैन सी this is working fine. This is showing this 83.4 83.4, लेकिन जहां पे कोई भी स्टूडेंट मिसिंग है, now you can see here average is 48.2 and here average is 60.25. In the same way one student is missing from here, and you can see here this average is 46.8 and this average is 58.5. अब हम किसको सही माने? हम यहाँ पे एवरेज 1 को सही मानेंगे या यहाँ पे हम एवरेज 2 को सही मानेंगे? टेल मी नाउ, हम किसको सही माने? डेटा 1 एवरेज 2, ये तो नाइंसाफी हो गई।
Hello, are you all there? Yes, sir. Okay, so please tell me now. हमारे पास एक डेटा है और उसके एवरेज 2 आ रहे हैं। हम किसको सही माने? हमारा ये वाला एवरेज सही है या ये वाला एवरेज सही है? कौन सा एवरेज सही है? सर आई गेस एवरेज 2, क्योंकि एवरेज 1 में अगर एक वैल्यू नहीं भी है तो भी वो डिवाइड बाय 5 हो रहा है, जबकि वो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए क्योंकि वैल्यू एक मिसिंग है। आवाज बहुत इको कर रही है। मैं आपकी आवाज क्लियर सुन नहीं पा रहा। आवाज पूरी आ रही है बट इको कर रही है। कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू आर सेइंग? सर मैं ये कह रही थी कि आई गेस एवरेज 2 इसलिए ठीक है क्योंकि एवरेज 1 में सारी वैल्यू डिवाइड बाय 5 हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग, तब भी वो वैल्यू वहाँ पे काउंट, मतलब फिर भी वहाँ पे डिवाइड बाय 5 हुआ है, तब कि वहाँ पे डिवाइड बाय 4 होना चाहिए था एवरेज लाने के लिए। Very good, very good. This is what I was expecting to listen. Thank you for that. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जब हम एवरेज फाइंड आउट करें तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 5 है, लेकिन यहाँ पे तो ये 4 ही सब्जेक्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये 4 सब्जेक्ट में ही प्रेजेंट है। सो आइडियली दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 4, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5 ही हो रहा है, राइट? जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो जितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने नंबर का ही एवरेज लेके आ रहा है। ये उसको हर हर वैल्यू को 5 से डिवाइड नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो हमारा एवरेज है, ये बेटर एवरेज है rather than this average. Is this clear? यस सर। यस सर। ओके, सो इस तरह से जो हम इसीलिए हम कहा जाता है कि जब भी आपको कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना हो, ऑलवेज प्रेफर टू वर्क विद द डेजिग्नेटेड फॉर्मूला ओनली। आप अगर मैनुअल कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से डेटा में मिस्टेक्स होंगी, इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप जो भी डेजिग्नेटेड फॉर्मूला है वो यूज करो। अगर हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ठीक से कैलकुलेट करना है, ठीक से एवरेज लेके आना है, देन दिस इज द ओनली वे टू डू दिस, राइट? अगर आप यहाँ पे वही चीज इंप्लीमेंट करना चाहो तो आप काउंटिफ के साथ में इसको यूज कर सकते हो। तो काउंट के साथ में आप यूज कर सकते हो। सो सिंपली एक काउंट फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हम एवरेज विद काउंट कर देते हैं। तो काउंट फंक्शन पहले मैं बता देता हूँ। काउंट फंक्शन क्या करता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनका काउंट बता देता है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं ये इनका काउंट यहाँ पे बता देगा, राइट? तो कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, राइट? तो अगर यही हम एवरेज विद काउंट लेते हैं सम के साथ में, तो सम ऑफ दीज वैल्यूज divided by count of these values again, right? And now you can see you will get the similar result, same result, right? Because now all values are not divided by 5, rather वो count हो रही हैं, count के बाद फिर अपना रिजल्ट जनरेट कर रही है। सो नाउ यू कैन सी, तो बेसिकली एवरेज का जो भी फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला जो इंटरनली कैलकुलेट होके आ रहा है वो ये है, राइट? सम ऑफ द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज। Is that clear on my side? Is any question with anyone? Diksha, Suhani? Yes. Clear है? Yes. Okay, great. So, apart from this, there are few other formulas like we have seen sum, average, count, max, min. So you have to find the maximum number. So suppose these are the marks in different subjects. So यहाँ पे let's suppose this is of Hindi, this is of English, this is of humanity, this is biology, and this is maths. So now if in every subject I want to
know the highest numbers. Highest numbers kitne hain, right? So just max out of this, I'll just select, and you can see Hindi mein highest number are 93. In the same way, English highest number 85. Then maths highest number 99. Math is again the winner. Okay, so like this, you can find out the minimum value and maximum values of particular columns. Correct? Correct hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In this, in the same way, there are this option when you want to move some values to down or right or up or left. So so you can use these options. Then this is eraser option. So you if you want to clear some format or clear some content or clear everything, then you can use clear all. So if I use this clear all, this everything will go off, right? So you have to be careful while using this option. Usually आपको इस option की जरूरत बहुत rare पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी, right? Now next is sorting and filters. So this sorting and filter part is basically, suppose if uh, I have data of different people, and I want to sort this based on the ranking, right? So this is data and this is sum. So I just want to sort this data in suppose descending order. I want to see who is the topper and I want to see who is at the lower space, right? So what I'll do, I just selected largest to smallest, right? Because the person who have achieved the highest mark will be the topper, right? So here I have selected this largest to smallest, right? So now you can see here it is already now adjusted into largest to smallest. So this is 258, 269, 268, 269. What is this? Okay, sorry. Sum of final भी इधर चला गया. Okay, we have to select this much only, right? And you can see you can use this direct link also of largest to smallest or smallest to largest, or you can, if you want to customize this further, you can use this customized sort, right? And here you can apply the form for whatever column you want to apply, right? So suppose I want to apply it for column I, right? Then cell values based on, and then largest to smallest or the smallest to largest. Then, okay, now you can see the smallest person is at the top, and then other values are after that. Then 297 is at the bottom, right? So like this, you can arrange, you can sort the data in various manners. We'll go one level up after some classes so that you can understand this more, the sorting part of the data, because this is very important. Sorting of data is basically arranging the data in a manner so that they can um, represent a certain order, right? Then there is a concept of filter, right? So filter is again filtering out the data based on certain condition. We'll come back to these options again in a few classes so that you can understand what all these things are and how these options are working efficiently. Anyone, any doubt so far? No, sir. No, sir. Okay, so do you want to input more? I think this is the first day, so I want to keep it lighter, but if you want, I can continue further. Do you want me to continue more? Yes, no, please say something. Sir, as you wish. Sir, if it's easier, then continue, and if it's
tough. Let's do this tomorrow. तन्वी, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आगे भी जो फॉर्मूलाज आप कराओगे वो इजी है तो आप अभी करा दो। फॉर्मूला तो अभी जस्ट मैंने इजी वाले बताए हैं। फॉर्मूले तो अभी स्टार्ट होंगे। ये तो वो फॉर्मूले हैं जो शायद आप में से कुछ लोग पहले यूज भी करते हो। मैंने उन्हीं के थोड़े से ब्रॉडर एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। फॉर्मूला तो मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा। चलो थोड़ी 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 चीजें और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कलरफुल एनवायरनमेंट मिले। राइट, सो लेट्स सी। यहाँ पे सपोज इसी में हम नया डेटा क्रिएट कर लेते हैं। सो नया डेटा क्रिएट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रैंड बिटवीन। राइट, सो ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है कि रैंडम नंबर जनरेट कर देता है जिस भी रेंज में हमें चाहिए। सपोज आई वांट टू जनरेट द रैंडम नंबर्स बिटवीन 30 to 95, राइट, so it will generate this number, राइट। और अब हम इसको इधर उधर कॉपी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से इधर की तरफ सेलेक्ट किया, राइट। और हमें राइट साइड में कॉपी करना है तो हमने सिंपली टाइप किया Ctrl+R, जिससे हमारा डेटा राइट साइड में कॉपी होके आ गया, राइट। इसी तरह से हमें नीचे कॉपी करना है फॉर्मूला। तो जो आप यहाँ पे मेरा माउस देख रहे हो, माउस जैसे ही इसका जो आइकन है चेंज होगा, वहां पे अभी देखो यहाँ पे आइकन चेंज हो गया, ब्लैक प्लस आ गया। हमने इसको उठा के नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दिया। यू कैन सी नाउ दिस बिग डेटा इज क्रिएटेड, राइट। तो इस तरह से आप कितना भी डेटा विद इन सेकेंड्स आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले यहाँ पे अब अभी यहाँ पे क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया टी टी, यहाँ पे हमने वो टाइप किया। यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स आर गेटिंग चेंज। ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। अभी नंबर चेंज क्यों हो रहे हैं? ये नंबर चेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। और एक्सेल की प्रॉपर्टी होती है कि हम कहीं पे भी कुछ भी चेंज करेंगे अगर शीट में, वर्कबुक में, तो सारे फॉर्मूले फिर से एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। सारे फॉर्मूले फिर से एग्जीक्यूट होंगे, और इसीलिए जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज किया, सारे फॉर्मूले फिर से एग्जीक्यूट हो गए। अब ये रैंडम फॉर्मूला है तो उसने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। सो दैट्स वाई ये हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूले को यहाँ से हटा देते हैं। फॉर्मूले को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज कॉपी करके और हम इनको पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, राइट। हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट पे गए। पेस्ट में यहाँ पे आ रहा है पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन आ रहा है, राइट। हमने जस्ट यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू क्लिक किया। नाउ यू कैन सी देयर इज नो फॉर्मूला। अब कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूला बार में कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते रहे, कुछ भी मतलब ही नहीं बनता, इसको कुछ भी नहीं करेगा, राइट, क्योंकि अब वो फॉर्मूला हट चुका है। जब तक फॉर्मूला वहां पे लगा हुआ था, जितनी बार भी हमारी पूरी शीट में कहीं भी कुछ भी एग्जीक्यूट होता है, वो वहां पे चेंज करेगा ही करेगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का डेटा है, सपोज यहाँ पे S2 S3 S, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे हमने सिंपली इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो जहां तक डेटा है वहां तक ये सारी चीजें अपने आप क्रिएट होके आ गई। इसी तरह से ऊपर हम सब्जेक्ट्स के नाम दे देते, सपोज इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज एंड हिंदी एंड tell me some subject names: physics, then bio, mechanics, and then इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ भी दे दिया, ठीक है। नाउ ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा में सबसे पहले तो हम ये मान लो कि एग्जाम का डेटा है और 33 स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स, राइट। नाउ सिंपल थिंग, मुझे मार्क्स फाइंड आउट करने हैं कि टोटल कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। टोटल के लिए जो अभी तक हमने देखा, सम फॉर्मूला देखा था, हम उसी को यूज करेंगे, सम, एंड वी सेलेक्टेड दिस रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 10 432 मार्क्स एंड देन एक्सटेंडेड। सो जहां तक ये है अपने आप कॉपी हो जाएगा। नाउ इन दिस लिस्ट
आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग फेल हैं, राइट? कितने लोग किस किस सब्जेक्ट में फेल हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इनको इस तरह सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, राइट? कंडीशन के बेस पे कलर करेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यही होम टैब में ही यू कैन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट सेल लेस देन, एंड लेट सपोज कि जिसके भी मार्क्स 35 से नीचे जो भी मार्क्स है वो हम उनको फेल मानते हैं, राइट? सो वी सिलेक्टेड 35, एंड यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने इनको रेड कलर से कर दिया। तो यहाँ पे हम गए इसको, एंड थोड़ा सा और लाइट रेड कर देंगे, ओके। So can you share your screen again? उसमें ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है। ओके ओके, मुझे लगता है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई जस्ट शेयर इट अगेन। Can you see screen now? Can you see the screen now? Yes. Okay. So I just यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सबको दिख रही है ये? Yes. यहाँ पे हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड लेस देन, राइट? तो यहाँ पे लेस देन हमने सपोज किया 35 से नीचे जितने भी हैं, देन यहाँ पे हमने उसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम, राइट? सो रेड कलर, रेड थीम में, और हम इसको थोड़ा सा लाइटर में ले जाते हैं, ओके। ओके किया, एंड दिस ओके। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल, राइट? सो यू कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। सो ये आपका बायोमैकेनिक्स में फेल है, देन ये तो 3 सब्जेक्ट में फेल है, ये एक में है, ये एक में है, ये 2 में है। क्लियरली वी कैन सी दिस विजुअलाइजेशन आउट ऑफ दिस, ठीक है? एनी डाउट? No, sir. ओके, नाउ आई वांट टू नो हर सब्जेक्ट में, कि हर सब्जेक्ट में टॉप के 2 स्टूडेंट कौन कौन से हैं इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आई वांट टू नो, राइट? सो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट? एक सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स, वी वांट टू नो टॉप 10 टॉप स्टूडेंट्स, राइट? टॉप 2 स्टूडेंट्स वी वांट टू नो हु आर द टॉप 2 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके ओके, और यहाँ पे ओके कर दिया। तो नाउ यू कैन सी इन दिस देर आर टू डिफरेंट, 2 स्टूडेंट्स आर देयर, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमें यहाँ पे टॉप के मार्क्स मिल गए। अब यही चीज हम बाकी कॉलम्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? तो बाकी कॉलम्स में अप्लाई करने के लिए एक तो तरीका ये है कि अभी मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज को सिलेक्ट करूँ, इसके बाद फिर यहाँ पे जाऊँ, फिर टॉप बॉटम रूल यहाँ पे अप्लाई करूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की इंग्लिश वाले कॉलम में, एज इट इज हम दूसरे कॉलम में भी अप्लाई करें। तो हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया, राइट? और इसको हमने जस्ट कॉपी किया, राइट? अब कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आए, अब हमें पेस्ट करना है। पेस्ट क्या करना है? एक तो सिंपल पेस्ट है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे सिंपल पेस्ट करते हैं, तो जो डेटा यहाँ पे होगा वही डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा along with the formatting, राइट? ये है सिंपल पेस्ट, राइट? लेकिन हमें सिंपल पेस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए कि जो यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ है वही फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी होके जाए और कुछ भी ना जाए। ये नंबर ह्यूमैनिटीज के एज इट इज बने रहे, हिंदी के एज इट इज बने रहे, फिजिक्स के एज इट इज बने रहे, बायोमैकेनिक के और इसी के वैसे ही बने रहे। सिर्फ जो यहाँ पे हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है कि जो 2 स्टूडेंट हैं जो टॉपर है वो हमें दिखने चाहिए, तो वो हम अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे गए पेस्ट पे, और पेस्ट के बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया फॉर्मेट,
राइट। तो हम यहाँ पे खाली फॉर्मेट डालना चाहते हैं और कुछ भी डालना नहीं चाहते, राइट। तो हमने यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी द एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड, नंबर हमारे वैसे के वैसे हैं, केवल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। फिर से हमने यहाँ पे हिंदी पे गए, हमने यहाँ पे रखा फॉर्मेट, फिजिक्स पे गए, यहाँ पे फॉर्मेट, बायोमैकेनिक्स पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट किया फॉर्मेट, ईसी पे गए, यहाँ सेलेक्ट किया फॉर्मेट, राइट। सो इस तरह से आप क्विकली कोई भी डेटा का फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं विदाउट नोइंग कि उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग स्टेप्स अप्लाई किए हुए, राइट। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे इस डेटा में यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है एज इट इज वही फॉर्मेटिंग दूसरे डेटा में भी अप्लाई हो जाएगी। आपको वही फॉर्मेटिंग स्टेप्स बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ पे हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, किसी रेंज के बीच में आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या इक्वल टू, या टेक्स्ट है या डेट सर्च करनी है, उनको हाईलाइट करना चाहते हो, आप वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे बॉटम रूल्स में आप डाल सकते हो, तो टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए या टॉप 10% स्टूडेंट्स चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो टोटल वाला कॉलम है इसमें हमें टॉप 10% चाहिए, राइट। तो टॉप 10% में हम अब यहाँ पे जाएंगे, टॉप टॉप 10%, ओके किया, और हमने यहाँ पे सपोज इसको हम ब्लू से हाईलाइट कर देते हैं, राइट। हमने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे टॉप 10%, सो यहाँ पे टोटल हमारे पास 33 स्टूडेंट्स है, टॉप 10% 3 स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो टॉप के हैं वो हाईलाइट होके आ रहे हैं। क्लियर है? देन इसी तरह से यहाँ पे आप डेटा बार डाल सकते हैं, तो डेटा बार में भी आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे ग्रेडियंट बार अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे हमने इस तरह से डाल दिया, तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज वाइज यहाँ पे जो जो होगा वो चीजें यहाँ पे बार के रूप में अप्लाई होके आ जाएंगी। सो यू डोंट नीड टू पुट एनी सेपरेट थिंग्स फॉर विजुअलाइजेशन ऑल्सो। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Is it interesting or is it just boring or too boring? Are you able to enjoy this? Please Yes. be, please keep on responding. Then only I can help you, because I cannot see your faces. So I cannot guess that whether you are really studying or you are not studying, or you are just sitting idle and doing something else. So your responses only can tell that you are really interested for this training. You are really listening or you are really learning. Okay. So keep on talking. जब तक आप मेरी कम्युनिकेशन को रेस्पॉन्ड करते रहोगे, आई वुड फील दैट आई एम गिविंग समथिंग यूजफुल। अदरवाइज मुझे भी लगेगा कि बेकारी में कर रहा हूँ, राइट। सो प्लीज बी कम्युनिकेटिव। So in the same way, you can find the above average, below average students also very quickly, and then you can put some color scales or icon sets. So icon sets हम बाद में एक डैशबोर्ड बनाएंगे, उसमें हम icon sets को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप icon sets को अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा में, ठीक है। Then apart from this, now there are let's explore some other tabs. हम आज फॉर्मूला और कोई नहीं करेंगे, हम मेनली जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिससे आपको एनवायरनमेंट से फ्रेंडलीनेस आ जाए, राइट। तो ये जो होम वाला टैब है ये तो हमने डिटेल में देख लिया सारी चीजें। नाउ देयर इज इंसर्ट। तो पिवट टेबल होती है, पिवट टेबल इज क्विक समराइजेशन टूल। हम यहाँ पे जब पिवट टेबल डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कैसे वंडरफुली सेकंड्स में
टेबल की समरी जनरेट होती है एकदम से और विदाउट एनी फॉर्मूला, राइट। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टूल। देन टेबल जनरेट करना है, कुछ आपको इलस्ट्रेशन पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी जनरेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। देन यू वांट टू क्रिएट योर ओन विजुअलाइजेशन आल्सो यूजिंग दिस चार्ट ऑप्शन एंड देन लाइन ऑप्शन, स्लाइसर आपके पाइवट टेबल से रिलेटेड होते हैं। वो सारी चीजें आप डिस्कस, वो सारी चीजें आप हम धीरे से सीखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लिंक करना हो तो आप यहाँ पे लिंक से भी डाल सकते हो। यहाँ पे कोई टेक्स्ट वैल्यू डालनी हो, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, वर्ड आर्ट साइन डालना है, या कोई बाहर की फाइल कोई लिंक करनी है, तो आप यहाँ पे उनको एज अ ऑब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। या कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, आप उनको डालना चाहते हो, कुछ आप इस तरह से इक्वेशन बनाना चाहते हो, तो आप ये इक्वेशंस वगैरह भी यहाँ पे बना के यूज कर सकते हो। ठीक है। देन आपका ड्रॉ वाला ऑप्शन होता है, तो आप कुछ कलर्स वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन यूज कर सकते हो। प्रिंट के लिए जो भी सेटिंग होती है पेजेस की, वो प्रिंट की सेटिंग आप यहाँ पे थीम्स और पेज सेटअप्स वगैरह वगैरह से कर सकते हो। तो उसके थ्रू ये जब भी आप अपनी पीडीएफ बनाओगे, प्रिंट लेने के लिए सेटिंग करोगे, तो ये सारी चीजें यूज करनी होंगी। देन ये आपका कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला होता है, जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, तो यहाँ पे सम से रिलेटेड फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किए हैं वो फॉर्मूला, देन फाइनेंस से रिलेटेड फॉर्मूला, लॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। देन लुकअप फॉर्मूले हैं, देन मैथ्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन, कॉस, साइन, थीटा, लॉग। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ये फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड, ये सारी बहुत डिटेल में जो फॉर्मूले हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मोस्टली जब भी आप किसी अदर अदर स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे तब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जनरल डे टू डे लाइफ में इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। एंड नेम मैनेजर है, हम इसको आगे देखेंगे जब भी हमें एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ हमें स्पेसिफिक नाम डिसाइड करना होता है, तो हम नेम मैनेजर को यूज करेंगे। और उसको कैसे करेंगे, वो सारा एरिया यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो भी जब भी हम कोई भी वैल्यू यूज करें तो उसके डिपेंडेंट्स क्या है, तो सपोज यहाँ पे हम इसको ये हमारी सेल है और हम देखना चाहते हैं कि ये सेल किस पे डिपेंडेंट है, राइट। तो हमें प्रेसिडेंट्स ट्रैक करने होंगे, प्रीसिडेंट्स, राइट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इसने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज पे डिपेंडेंट है ये वैल्यू जो कि H3 पे है। ऑब्वियसली ये सम B3 से G3 तक का सम ले रहा है, तो B3 से G3 तक जो भी चेंजेस होंगे उसका इफेक्ट इस पे आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, अब ये स्टैंड अलोन वैल्यू है, राइट, इसकी बात करें तो इसके लिए कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होगा, राइट। द ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड रिक्वायर्स दैट द एक्टिव सेल कंटेन अ फॉर्मूला। जब फॉर्मूला होगा तभी उसका प्रेसिडेंट होगा, राइट, और तभी उसके बेस पे वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है, राइट। ट्रेस डिपेंडेंट्स, राइट। तो अगर आपको डिपेंडेंट ट्रेस करने हैं, तो सपोज अगर हम इसका डिपेंडेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यहाँ पे ये है हमारा M4, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आ रहा है ये ट्रेस डिपेंडेंट, क्योंकि अब ये जो एक्टिव सेल है, ये जो सेल जहां पे हमने क्लिक किया हुआ है, ये कहीं भी दूसरे फॉर्मूले में रेफरेंस होके नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आ रहा है कि ये इस पे कोई भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर सपोज हमने यहाँ पे E4 को लिया, राइट, तो E4 के बेस पे हमारा ये जो टोटल वाला कॉलम है ये डिपेंडेंट है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स लगाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू पे टोटल की वैल्यू डिपेंडेंट है, राइट। तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन चेक। जब भी हमारे बड़े फॉर्मूले होते हैं अक्सर ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप डिपेंडेंट एंड प्रेसिडेंट्स यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। फॉर्मूला आपको शो करना है तो पूरे सेल में कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपको जज करना है, तो आप यहाँ पे शो फॉर्मूला पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो H कॉलम है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। बाकी कॉलम से फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, H कॉलम में हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आप फॉर्मूले को यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। इसी तरह से एरर चेकिंग है, जब एरर चेकिंग वाला पार्ट आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इवेल्युएट फॉर्मूला, आप जब भी हमें कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है वो
उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना होता है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि वन बाय वन हम वो कैसे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो हम जानना चाहते हैं, तो हम इवैल्यूएट फॉर्मूले को यूज करते हैं। जब अभी हम आगे और फॉर्मूले देखेंगे तो मैं इवैल्यूएट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं मैं वो भी यूज करना आपको बताऊंगा। राइट, देन वॉच वॉच विंडो होती है जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर सेल को बार बार जज करना होता है, बार बार उसको एग्जामिन करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वॉच विंडो को यूज करते हैं। विल सी की क्या है। देन कैलकुलेशन ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम किसी भी शीट पे कोई भी चेंज करते हैं तो तुरंत फॉर्मूला एग्जीक्यूट होता है। राइट, तो कैलकुलेशन ऑप्शन क्या करता है कि ये आपको एक ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप जो अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है आप इसको मैनुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप इसको मैनुअल में कन्वर्ट करोगे तो इमीडिएटली जो भी फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम यहाँ पे रैंड बिटवीन यूज करते हैं, रैंड बिटवीन यूज करते हैं और यहाँ पे हमने लिया 40 से एंड 89 के बीच में हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड भी कर लिया। राइट, अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट हुई है, यहाँ पे मैनुअल किया हुआ है। राइट, तो मैनुअल करने पे क्या है कि ये जो वैल्यू जो फॉर्मूला है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उसने सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रही है। लेकिन जैसे ही ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, अगर हम इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होके आ गई। राइट, अभी हम यहाँ पे सपोज वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं तो आप देखोगे कि जे कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया है। राइट, यहाँ पे हमने 90 डाला चेंज हो गया, यहाँ पे हमने 67 डाला चेंज हो गया। राइट, अभी हम यहाँ पे अगर इसको मैनुअल कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पे अब देखो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये सब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने मैनुअल कर दिया है। तो अभी जो भी फॉर्मूला है वो पॉज है, जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने का उसको ऑर्डर देंगे, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये हमें जरूरत पड़ती जब हम बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं और हमारी पूरी शीट में पूरे इसमें पूरी वर्कबुक में बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन चल रहे होते हैं, तो शीट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और शीट का साइज बहुत बड़ा होने पे क्या होता है कि फिर जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्लो हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारा वर्क होता है वो हैम्पर होने लगता है। तो वो हमारा वर्क हैम्पर ना हो उसकी वजह से यहाँ पे हम वो जो ये सेटिंग है उसको हम यहाँ पे मैनुअल कर देते हैं, जिसकी वजह से हर बार फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होगा। एक बार हमने सारे चेंजेस कर दिए, इसके बाद फिर हमने एग्जीक्यूशन का कमांड दिया तो वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट सारे हो जाएंगे। तो इसके लिए जो कमांड होता है वो F9 कमांड होता है। आप यहाँ पे जैसे मैनुअल ही है, लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो हम यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे मैनुअल है और अभी हमें एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला एग्जीक्यूट कराना है, तो हम सिंपली यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और सारे फॉर्मूले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, सो आई गेस आज के लिए काफी हो गया है। Save this sheet and I'll share with you all so that और ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी LMS पे, so you can access this recording and you can revisit if you are not able to understand something. Is it clear? Okay, sir. Okay, so we'll keep it at this for today and we'll connect at the same time tomorrow. Thank you. Thank you.